Hello, friends. Welcome back to Elite Professional Academy. I'm your friend and teacher CA Mohit, and in this session, we are discussing C-Enter Company Law, the procedure for formation of company. Friends, in the last lecture itself, we have started the procedure for incorporating the company, and in this session, we are going to conclude with section number 7, which tells us about the how to incorporate the company. So we'll quickly have a go through quick recap over what we have seen so far in section number 7. So here is section number 7 in front of you. For incorporating any kind of company, we have to apply to the ROC, or which ROC? The ROC in of which jurisdiction or your company's register office is situated. Means, suppose your company's register office is in Mumbai, so you have to apply to Mumbai ROC. If your register office is in Surat, that is in Gujarat, so you have to apply to the Gujarat ROC. Okay. Nextly, which form you have to use for registration of that company is INC 32, and the procedure which we have to follow is has been given in the SPICE, that is simplified process for incorporating the company electronically. Okay. Next one, the documents which you have to submit along with the form number INC 32 is the first document MOA AOA, which is duly subscribed, duly signed by each subscriber of the company. In case of a private company, there are two subscribers minimum requirement, and in case of a public company, there are minimum requirement is of a 7 subscribers. Next one, two declarations we have to submit. One declaration is by advocate, CA, CS, CMA, any other professional engaged in the process of incorporation, and the first director and the manager of the company or secretary of the company. Now, what we have to write down in that declaration, that all the rules, all the applicable provisions, all the requirements of the act to incorporate the company has been duly complied with. That's it. इतना ही लिखना है उसमें. Next one, third declaration, that is a third document, that is again declaration, has to be given by the each subscriber of the MOA and the first director of the company. Okay. Now, in this declaration, what we have to give? We have to give three information, three uh, points on which declaration has to be submitted. Is first one, that any subscriber of the MOA or any director of the company has not been convicted for an offense relating to the formation and promotion of the company. Next one, he has been not been found guilty for fraud or misfeasance for any other company in previous 5 years, in last 5 years, and whatever document information furnished to the ROC is true, correct, and complete. Now, for this, we have seen the penalty under section 447 also, that if you have incorporated your company or you are going to incorporate the company by furnishing false information, then you will be punished under section 447, and the punishment is on each subscriber of the MOA, first director of the company, and any other professional which is engaged in the process of incorporation. That is, आप भी इस पेनल्टी के दायरे में आ सकते हो. Next one, we have to give address for the correspondence till the register office is established. We have seen section number 12. In that, we have to um, have the register office within the period of 30 days from the date of the incorporation. Incorporation होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर ऑफिस बनाना पड़ता है और उसका वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है. तो आपने 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्टर ऑफिस बनाया तो भी चलेगा, लेकिन जब आप रजिस्टर करवा रहे हो तब आपको आरओसी को अपना एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देना जरूरी है. नेक्स्ट वन, डिटेल्स, दो डिटेल्स आ रहे हैं अभी यहाँ पे. डिटेल्स अबाउट द सब्सक्राइबर एंड डिटेल्स अबाउट द फर्स्ट डायरेक्टर. दोनों में कंटेंट सेम है. नेम इंक्लूडिंग सर नेम, अगर नहीं है तो फिर फैमिली नेम, उसके बाद उनका नेशनलिटी, उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस, और डायरेक्टर के बारे में एक एडिशनल चीज जो थी, क्या बोलो, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो दोनों के लिए सेम बातें जाएगी, बस डायरेक्टर के लिए हम लोग को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. नेक्स्ट वन, कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर एंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इन एनी अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट इफ एनी. अगर मान लो फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर है, अगर उनका किसी और कंपनी में किसी प्रकार का इंटरेस्ट है, या फिर वो किसी फर्म में बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड है फाइनेंशियली और अदरवाइज,
तो उन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे ही अपना कंसेंट दे देना है कि इवन इफ हम लोग वहां पे इंटरेस्टेड है, लेकिन हम लोग इस कंपनी में भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमने क्या करनी है बोलो, आरओसी के पास सबमिट करनी है। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, 1 2 1 2 1, यस और नो। सो यहाँ पे 1 2 1 2 1 क्या था बोलो, 1 MOA AOA, 1 MOA AOA, उसके बाद 2 डिक्लेरेशंस, उसके बाद एक रजिस्टर ऑफिस, ठीक है, फिर 2 डिटेल्स और एक कंसेंट। ओके, तो ये आपने याद कर लिया तो आपको सारे डॉक्यूमेंट याद रह जाएंगे। अगर आप एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग जाएंगे किसके पास बोलो, हम लोग जाएंगे आरओसी के पास। और आरओसी क्या करेगा, इन सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, और अगर उनको ये सही लगा, आरओसी को लगा कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो वो आपको क्या करेगा, एक मस्त चकाचक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, जो आपका कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा, दैट इज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ तो उसके बाद कोई माई का लाल आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने कंपनी को गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है। कोई भी आपकी कंपनी की तरफ उंगली नहीं उठा सकता कि आपने कंपनी को आप कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सके, या फिर आपने कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बार मिल गया तो इट हैज बीन कंक्लूसिव एविडेंस दैट यू हैव फॉलोड ऑल द फॉर्मेलिटीज, all the requirements, all the legal procedure, and you have formed the company through legal way, ये माना जाएगा, ठीक है ना। और इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में होता है सिन, दैट इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इट इज नॉट ए कंपनी आइडेंटिटी नंबर, इट इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो 21 डिजिट का होता है। इसके लिए हमने पिछले लेक्चर पे एग्जाम्पल भी देखा था, रेड चिली एंटरटेनमेंट्स का हमने सीन नंबर देखा था, उनके डायरेक्टर्स का दिन भी देखा था, ठीक है ना। 2 डायरेक्टर थे अपने, शाहरुख खान जी और उनकी पत्नी गौरी खान। तो ये भी हमने देखा था कल के लेक्चर पे, ठीक है ना। चलो, सो इतनी सारी बातें हमने कल के लेक्चर पे कर ली हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 भी देखा था। तो वही सबसेक्शन 5 एंड 6, तो यहाँ पे ये बताया है कि अगर आपकी कंपनी को आप गलत इंफॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो भले ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई है, जो भी बंदा ये गलत इंफॉर्मेशन देगा, भले ही वो प्रोफेशनल हो, भले ही वो फर्स्ट डायरेक्टर हो, भले ही वो सब्सक्राइबर हो, उसको सेक्शन 447 के अंदर क्या होगी बोलो, पनिशमेंट जरूर होगी। और सबसेक्शन 6 में ये कहा था, ठीक है ना, ये कहा है देखो, वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब अगर मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, सबसेक्शन 5 में इन कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले की बात बोली है, और यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद की बात बोली है। It is proved that the company has got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation by suppressing any material fact or document or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by fraudulent actions, the promoters and the person named as the first director of the company and the person making the declaration under this section shall be liable for the action for the fraud under section 447। मतलब यहाँ पे भी किन किन लोगों को इंक्लूड किया है, यहाँ पे प्रमोटर्स को इंक्लूड किया है, यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर्स को इंक्लूड किया है, और जो भी बंदा जिन्होंने डिक्लेरेशन सबमिट किया है उन सब लोगों के ऊपर ये पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 447। और सेक्शन 447 की पेनल्टी क्या थी बोलो, तो सेक्शन 447 में अगर हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पे ये हमको समझता है कि ये पेनल्टी जो है वो 2 प्रकार में डिवाइड की है। पहला प्रकार जो है वो है द फ्रॉड which involves amount less than 10 lakh rupee or 1% of the turnover, and next part is the fraud which is greater than or equal to 10 lakh rupee or the fraud amounting to greater than or equal to 1% of the turnover whichever is less। तो अगर मान लो आपका फ्रॉड स्मॉल अमाउंट का फ्रॉड है तो आपको पेनल्टी कितनी होती है, अप टू 5 years, और फाइन आपको लग सकता है अप टू 50 lakhs, या फिर बोथ भी आपको लग सकता है। लेकिन अगर आपका फ्रॉड बिग अमाउंट का होता है तो आपको मिनिमम जेल होती है कितनी बोलो, 6 महीने की, ठीक है। उसके बाद ये मैक्सिमम हो सकती है 10 साल, मतलब 6 महीने से लेके 10 साल तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है। और एंड बोला है यहाँ पे, और था लेकिन यहाँ पे एंड है, एंड आपको फाइन लग सकता है 100% to 300% of the amount of the fraud, ठीक है। नेक्स्ट वन,
यस, सो अगर आपका फ्रॉड जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, मतलब कि आपके फ्रॉड की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट हो रहा है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, तो उस केस में आपकी जो मिनिमम जेल थी 6 महीने की, वो हो जाएगी कितनी बोलो, 3 साल की। सो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 3 साल मिनिमम से लेके 10 साल, और फिर 100% टू 300% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड का पेनल्टी आपके ऊपर ठुक सकता है। क्लियर है? तो ये था सेक्शन नंबर 447। अब जाते जाते मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने मूसा वर्सेस अब्राहम करके जो केस था उसको एक बार आपने पढ़ना है, उसको रिसर्च करना है। आई थिंक आपने वो केस स्टडी जो है वो थोड़ा सा उसके रिसर्च किया है, थोड़ा उसकी इंफॉर्मेशन ड्रैग डाउन कर ली है और उसको पढ़ भी लिया है। तो चलो डिस्कस करते हैं उस केस स्टडी के साथ साथ उसको उससे उसके साथ जुड़ी हुई प्रोविजन को भी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है, कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाता है कि कंपनी जो है वो फॉर्मल तरीके से, लीगल तरीके से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। भले ही कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया हो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर, कंपनी के एग्जिस्टेंस के वैलिडिटी के ऊपर आप किसी प्रकार का दोहराई नहीं रख सकते। आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि कंपनी तुम जो हो वो गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट हो चुकी हो और अब तुम बंद हो जाओ, अब तुम्हारा एग्जिस्टेंस हम लोग नहीं मानते हैं। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और उसको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि कोई भी बंदा कंपनी को, मान लेते हैं कोई भी रिलायंस है, ठीक है ना, रिलायंस हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रिलायंस लिमिटेड, मान लेते हैं रिलायंस लिमिटेड को गलत इंफॉर्मेशन देके, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इनकॉर्पोरेट किया हो, और ये सारी बातें आरओसी को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बावजूद आरओसी के नजर से ये बातें छूट गई और आरओसी ने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, क्या नाम से, रिलायंस लिमिटेड करके। और आरओसी ने रिलायंस लिमिटेड को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। तो क्या कोई रिलायंस लिमिटेड के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवालिया निशान बना सकता है कि हाँ कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में है लेकिन हम लोग इसका एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं बिकॉज कंपनी जो है वो गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता, रिलायंस लिमिटेड के ऊपर किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, 7 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 में डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स और प्रोफेशनल्स के ऊपर जरूर पेनल्टी लगती है, लेकिन यहाँ पे किधर ऐसा नहीं बोला है कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी है या कंपनी का एग्जिस्टेंस चला जाएगा, ऐसा किधर भी नहीं लिखा हुआ है। आप जाके पढ़ना एक बार सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 को। कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी प्रकार का अफेक्शन नहीं आएगा, मतलब इट इज अगेन व्हाट, ए कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंपनी is in existence and company has incorporated by a valid legal means and legal procedure। और इसी जजमेंट को पास किया था मूसा वर्सेस अब्राहम। केस का नाम क्या बोलो, मूसा वर्सेस अब्राहम, ठीक है ना। 1913 का ये केस स्टडी है, मूसा वर्सेस अब्राहम। ओके, व्हाट दे हैव सेड एंड व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ मूसा वर्सेस अब्राहम, चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हुआ ये था, ठीक है ना, एक बंदा था, ठीक है ना, एक बंदा था, ठीक है ना, एकदम जबरदस्त। ओके, उसकी दो पत्नियां थी, उसकी दो पत्नियां थी, ठीक है। और इन दो पत्नियों से उनको कुछ लगभग 6 बच्चे थे, ठीक है ना। अब छोटे 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 6 बच्चे, छोटे 6 बच्चे, 3, 4, 5, ओके, और एक बड़ा था, ठीक है ना, मतलब एक अडल्ट बच्चा था, ठीक है ना, और ये जो 5 थे वो थे माइनर, ये थे माइनर, ठीक है। अब हुआ यूं, ठीक है, कि
ये जो फादर थे, ये जो बंदा था, ठीक नहीं, फादर, मदर्स, मदर नहीं, अभी अभी मदर्स होगा। तो अब इस टेक्निकलिटी में मत घुसो कि सर मदर नंबर 1 से कितने बच्चे थे, मदर नंबर 2 से कितने बच्चे थे। वो आपको इतने पर्सनल बातों में घुसने की जरूरत नहीं है, वो उनका आपसी मामला है, ठीक है। सो ये जो फादर थे, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी थी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। अब ये अडल्ट बच्चा जो था, इसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसका चाल चलन ठीक नहीं था। तो फादर को लगा कि भाई इसके ऊपर भरोसा रखने से कुछ फायदा है नहीं, ये क्या करेगा, ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी को बेच के खा लेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फादर ने एक कंपनी बनाई, ठीक है ना, ही इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी, ही इनकॉर्पोरेटेड, यस। तो हम लोग कहाँ पे थे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था। अगेन रिज्यूम करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, यस। तो ये जो फादर है उन्होंने क्या किया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, और कंपनी इनकॉर्पोरेट करके अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो उस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी। सो प्रॉपर्टी क्या होगी बोलो, ट्रांसफर होगी, किसको बोलो, कंपनी के नाम पे, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो गई, कंपनी के शेयर होल्डर्स को इवेंचुअली राइट मिल जाता है उस कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये जो बंदा था, जो फादर थे, अगर उन्होंने अपने इंडिविजुअल नाम पे प्रॉपर्टी रखी रहती, तो ये जो माइनर 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, और ये जो अडल्ट बच्चा है, ठीक है ना, ये एक अडल्ट बच्चा और ये 5 माइनर बच्चे, इन लोगों का क्लेम उस प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाता। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हुई है, अभी इस कंपनी में जो मेंबर्स रहेंगे उनको ही इवेंचुअली उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट है वो आ जाएगा। और फादर ने कंपनी को बनाने के टाइम पे एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, खुद उस प्रॉपर्टी में क्या रहे बोलो, मेंबर रहे अपनी एक बीवी के साथ, ठीक है। और ये जो 5 माइनर बच्चे थे, ठीक है ना, 5 माइनर चाइल्ड्स, इनको इस कंपनी में मेंबर बना दिया, ठीक है। तो कुल मिला के 7 मेंबर इस कंपनी में ऐड किए गए एज अ मेंबर। सो 7 पर्सन हैज बीन एडेड इन द कंपनी एज अ मेंबर, ओके। अब आप सब लोगों को पता ही है कि माइनर जो है वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। सो ये माइनर जो है, इनके नाम इन्होंने इनको मेंबर बनाया गया अंडर द गार्डियनशिप, ठीक है ना, गार्डियनशिप। और ये जो दो मेजर मेंबर है, इन्होंने इनको गार्डियन करके अपॉइंट किया, मतलब ये दो ही लोग उनको एज अ गार्डियनशिप अपॉइंट हो गए, और इन्होंने अंडर द गार्डियनशिप उन 5 माइनर बंदों के बिहाफ पे कंपनी में मेंबरशिप ऑब्टेन कर ली। मेंबर तो 5 माइनर बच्चे ही हैं, साथ साथ ये दो जो लोग हैं, ये दो लोग क्या हो गए बोलो, मेंबर हो गए। तो कुल मिला के 7 मेजर लोग इस कंपनी में मेंबर हो गए। अब कंपनी क्या हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। तो ये जो अडल्ट बच्चा है, ये जो अडल्ट बच्चा है जिसका नाम था एब्राहम, इसका नाम था एब्राहम, इसने क्या किया, इसने क्या किया, कंपनी के अगेंस्ट केस ठोक दिया। बोला कि ये कंपनी क्या है बोलो, फेक कंपनी है। ये कंपनी क्या है, फेक कंपनी। क्यों, बिकॉज इस कंपनी में जो मेंबर्स है उनमें से 5 मेंबर्स क्या है बोलो, इनमें से 5 मेंबर्स क्या है, माइनर है। और माइनर कभी भी किसी कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते एट देयर ओन। ये जो 5 लोग हैं, इन्होंने अंडर गार्डियनशिप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके कंपनी में मेंबरशिप हासिल कर ली है। और इसी बलबूते पे, इसी बुनियाद पे कंपनी को क्या करना करा जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर करा जा सकता है। कंपनी का एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, कि कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लोग सवालिया निशान पैदा कर सकते हैं। और कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसको आप बंद कर दो, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, और जो भी प्रॉपर्टी है वो उस पिता के नाम पे, फादर के नाम पे ट्रांसफर कर लो। तो यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि देखो बेटा, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो इसके ऊपर हम लोग किसी प्रकार का सवालिया निशान उठा नहीं सकते। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और कंपनी को हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते। कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लोग किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क उठा नहीं सकते। कंपनी अभी बन चुकी है, कंपनी अपने हिसाब से चलेगी। हाँ,
हम लोग डायरेक्टर वगैरह इन लोगों के ऊपर पेनल्टी वगैरह ठोक सकते हैं, लेकिन कंपनी को हम लोग बंद नहीं कर सकते। जो प्रॉपर्टी कंपनी की है एज पर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी वो कंपनी की ही रहेगी, वो प्रॉपर्टी हम लोग वापस ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये जो है वो केस, वो अडल्ट बच्चा जो है वो हार गया, ठीक है। अडल्ट बच्चा मतलब अडल्ट जो उनका सन था वो हार गया। अब केस का नाम था मूसा वर्सेस अब्राहम, ठीक है ना, मूसा वर्सेस अब्राहम, ठीक है ना। इसमें अब्राहम अडल्ट बच्चा है, मूसा फादर का नाम नहीं है, मूसा एक माइनर बच्चे का नाम है, ठीक है ना। जिसने हायर कोर्ट्स में क्या किया, उसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल किया था बाद में, ठीक है ना। पहले केस वो कंपनी और अब्राहम के बीच में था, लेकिन केस का जो ये है फैक्ट है वो लोअर कोर्ट्स में जब अब्राहम गया तो लोअर कोर्ट्स ने अब्राहम के बाजू में इसका रिजल्ट दिया था। लेकिन आगे जाके जो माइनर बच्चा है मूसा, उसने हायर कोर्ट्स में पिटिशन फाइल किया और उन हायर कोर्ट्स में क्या हुआ, अब्राहम के अगेंस्ट ये केस चला गया और कंपनी के एग्जिस्टेंस को किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंची। ओके, तो ये केस था और इस केस से हमने ये सीखा कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, भले ही कंपनी इनकरेक्ट, फॉल्स या कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और एक बार आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया तो उस केस में कोई माइकल लाल उसके अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता, वो कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकता। क्लियर है? ओके, पक्का। अब ये तो बात होगी उस केस की, ठीक है ना। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं होती है हमको कि सर कैसे, मतलब एक गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कंपनी इनकॉर्पोरेट हो भी जाती है, क्योंकि चलो आरओसी से इधर उधर से कुछ गलतियां हो गई, होने की संभावना तो रेयर है, लेकिन चलो मान लेते कि हो गई। तो लेकिन सर ये तो गलत बात होगी ना कि गलत चीजों के गलत बेस के ऊपर, गलत फॉर्म्स के ऊपर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और हम उसको वैलिड मान रहे हैं। मतलब लॉ जो पढ़ते हैं, लॉ की जिनको जानकारी है, वो तो इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, सबसेक्शन 7 को इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 7 में। क्या बताता है देखो, ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, यू नो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है ना। ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है। मैंने आपको आई थिंक जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ाने के टाइम पे बताया था कि व्हाट इज क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। जो मेन स्ट्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बेंचेस और ये, उसके साथ साथ ये पैरेलल जुडिशियल अथॉरिटी चलती है जो एक कोर्ट की तरह काम करती है, जिनके डिसीजंस को कोर्ट के डिसीजंस माने जाते हैं, लेकिन ये रियल ओरिजिनल जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है जिसमें बस कंपनी के रिलेटेड जो भी मामले हैं उनका हियरिंग, इनका प्रोसिक्यूशन होता है। तो एनसीएलटी, ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी, where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation, or by suppressing any material fact or information in any of the document or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action। मतलब मोटा मोटी बात कर ले, कंपनी गलत तरीके से आपने इनकॉर्पोरेट कर ली है, द ट्राइब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट। अब देखो एप्लीकेशन किसको मिला है, ट्राइब्यूनल को। तो अगर किसी बंदे ने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन कर दिया, ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट मतलब ट्राइब्यूनल को किसी ने अगर अप्लाई किया, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट, मतलब एनसीएलटी को किसी ने अप्लाई करना चाहिए कि देखो ट्राइब्यूनल, ये कंपनी जो है वो गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट हुई है, हमको ये लगता है कि ये कंपनी गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ट्राइब्यूनल उस केस में क्या करेगा, अगर उनको लगता है कि हाँ सही में गलत इंफॉर्मेशन, गलत डॉक्यूमेंट, गलत डिक्लेरेशन, सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट्स के बुनियाद पे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो ट्राइब्यूनल क्या क्या कर सकता है, देखो ट्राइब्यूनल ए बी सी डी चार पावर है ट्राइब्यूनल के पास, और और भी आगे पावर है, लेकिन इस पन्ने पे चार ही दिख रहे, ABCD। पास सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी in its memorandum and articles in the public interest or in the interest of the company and its members and creditors। मतलब पहले ट्राइब्यूनल कुछ ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है, कुछ ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है जो कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करने के इम्पैक्ट हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल
अगर मान लेते हैं कंपनी में 3 डायरेक्टर है, ए बी सी, 3 डायरेक्टर है और ये सी बंदे ने क्या किया, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ए और बी तो सही थे, तो क्या उस सी की गलती की वजह से पूरी कंपनी को हम लोग बर्बाद कर देंगे, पूरी कंपनी को स्क्रैच आउट कर देंगे? नहीं। तो उस केस में ट्राइब्यूनल बोलेगा इस सी को हटाओ और सी की जगह पे डी को लेके आओ जो सही बंदा रहे, या फिर सी को अपने मैनेजमेंट से ही हटाओ। ऐसा ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है, या फिर कंपनी के मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में बदलाव करने के ऑर्डर पास कर सकता है कि ये जो बात है ये कंपनी के हित में नहीं है, और भले ही कंपनी अभी गलत इंफॉर्मेशन, गलत एविडेंसेस, गलत डॉक्यूमेंट दे के इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन अभी इन चेंजेस से हम लोग क्या करते हैं, आपको कंपनी को ये बताते हैं कि ये वाली बातें हटा दो और कंपनी को नए सिरे से क्या करो, आप चालू करो। कंपनी को हम लोग बंद नहीं करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, बस कंपनी में कुछ चेंजेस करो जिसकी वजह से कंपनी सही ढंग से काम करे इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी के इंटरेस्ट में, कंपनी के मेंबर्स के इंटरेस्ट में, कंपनी के क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है कि आप इन चेंजेस से कंपनी को कंटिन्यू कर लो। वाई? बिकॉज जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कुछ 2 साल के बाद पता चला कि ये कंपनी बहुत गलत चीजों से इनकॉर्पोरेट हुई है, गलत बेस पे इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उन 2 सालों में कंपनी ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे अरेंजमेंट, बहुत सारे एग्रीमेंट्स आउटसाइडर के साथ किए रहेंगे, और आउटसाइडर्स आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो खाली पीली आउटसाइडर्स को नुकसान क्यों करवाए? बिकॉज ऑफ द एरर्स, बिकॉज ऑफ द फॉल्सिटी ऑफ फ्यू पीपल। तो इसलिए ट्राइब्यूनल कंपनी को खारिज नहीं करेंगे, बस कंपनी में कुछ बदलाव करके कंपनी के मेंबर्स, कंपनी खुद या फिर कंपनी के क्रेडिटर्स के हित में जो चेंजेस करने चाहिए उस चेंजेस के ऑर्डर ट्राइब्यूनल पास कर सकती है, और कंपनी ने वो चेंजेस फॉलो करने हैं या फिर वो चेंजेस अपने कंपनी में इंकलकेट कर देने हैं। क्लियर है? तो ये हो गया पहला ऑर्डर। ओके, तो ये और क्या कर सकता है? और नहीं, और क्या कर सकता है? या फिर डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। मतलब कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड करा सकते हैं। मतलब ये भी अगेन इन द इंटरेस्ट ऑफ क्या हो गया? इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हुआ। कंपनी गलत चीजों से, गलत कारणों से इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका नुकसान थर्ड पार्टी को क्यों? क्रेडिटर्स को क्यों? इसलिए कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड करा सकता है इवन इफ कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। या फिर अगर ये करने के बाद भी, अगर ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर को दिमाग में रखने के बाद भी ट्राइब्यूनल को लगता है कि ये बात करने से कुछ नहीं होता है, कंपनी का नाम ही डायरेक्टली कंपनी के रजिस्ट्रार से निकाल दो, या फिर कंपनी को वाइंड अप करवाने का भी ऑर्डर पास करो। क्या करो? कंपनी को वाइंड अप करवा दो, मतलब कंपनी को भी बेच दो। रजिस्टर से नाम हटाना और कंपनी को वाइंड अप करना दोनों अलग अलग बात है, वो अपने सीए फाइनल में सीखेंगे वाइंडिंग अप के चैप्टर में, कि वाइंडिंग अप और रिमूवल ऑफ द कंपनीज नेम फ्रॉम द रजिस्टर में क्या फर्क होता है। ठीक है ना? अब तक हम लोग ये समझे कंपनी को बंद करने का ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है? सो पहला जो ऑर्डर है वो हो सकता है कंपनी वैसे के वैसे रख के कंपनी में कुछ चेंजेस के ऑर्डर पास कर सकते हैं, या फिर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड बनाने का ऑर्डर पास कर सकते हैं, या फिर कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं, या फिर कंपनी को वाइंडिंग अप कराने का भी ऑर्डर पास करा सकते हैं। ठीक है? और पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट डीम्स फिट। क्या क्या? नेम रिमूवल, वाइंडिंग अप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, चेंज इन द एमओए एंड अदर ऑर्डर्स। ओके, तो मतलब क्या है कि ये जो है वो समरी दिया हुआ है, ये चार्ट जो है वो समरी दिया हुआ है। अदर ऑर्डर्स मतलब कि ये बात है, ये वाली बात बता रहे हैं। ठीक है? अदर ऑर्डर्स मतलब कि इसको छोड़ के अगर कुछ और ऑर्डर पास करवाना अगर ट्राइब्यूनल चाहता है तो वो कुछ और ऑर्डर भी पास कर सकता है इन द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। क्लियर है? पक्का झेप्या? चलो, सो हमने क्या बताया यहाँ पे कि भले ही कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई भी बंदा, कोई माइका लाल कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता, लेकिन अगर ट्राइब्यूनल को किसी ने जाके बोला कि देखो ये कंपनी कुछ गलत कारणों से इनकॉर्पोरेट हुई है और अगर ये प्रूव हो जाता है तो बस अकेले ट्राइब्यूनल के पास ये पावर दिया हुआ है कि वो उस बिहाफ पे ऑर्डर पास कर ले। तो ऑर्डर क्या क्या पास हो सकते हैं? एक तो कंपनी में चेंजेस करवा सकते हैं, कंपनी के एमओए में चेंजेस करवा सकते हैं, या फिर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड करवा सकते हैं, या फिर कंपनी का नाम
रजिस्टर से रिमूव करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं, या फिर कंपनी को वाइंडिंग अप करवाने का ऑर्डर पास कर सकते हैं, और इसको छोड़ के और भी कुछ ऑर्डर पास करने का ट्राइब्यूनल सोच रहा है तो वो भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो ये जो ई पॉइंट है, इससे लॉ मेकर्स ने, कंपनी लॉ ने, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइब्यूनल को ये पावर देके रखा है, ट्राइब्यूनल को पावर देके रखा है कि आप उस केस में उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आप लोग किसी और प्रकार का भी ऑर्डर पास कर सकते हो। क्लियर है? पक्का? चलो फिर काम करेंगे, इसको एक बार पढ़ लेंगे, सबसेक्शन 7 को एक बार पढ़ लेंगे। कम ऑन फास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। ये जो बी पॉइंट है ना, एक बार मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये जो बी पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला, ठीक है ना, इससे आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मतलब ये किस चीज को कोरिलेट कर रहा है? टू विच प्रोविजन इट इज कोरिलेटिंग? कैन यू गेस? सो इट इज कोरिलेटिंग विद द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, lifting of corporate will under statutory provisions, under statutory provisions, lifting of corporate under the statutory provisions। ओके, तो इस चीज से वो क्या कर सकते हैं? कोरिलेट कर सकते हैं। ये उस वैसे लग रहा है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल जैसा, कि किसने गलती किया है उसको आप लोग पनिश करो, उसको आप लोग लायबल पकड़ो, ठीक है। नीचे आपको ट्राइब्यूनल का भी मीनिंग दिया हुआ है, देखो, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, वही क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया that adjudicates the issues relating to the company in India। इसका भी हिस्ट्री है ट्राइब्यूनल का, वो कभी बाद में बताता हूं मैं, ट्राइब्यूनल का क्या हिस्ट्री है। आगे ये पॉइंट है, ये समरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, ठीक है। आप इस समरी को अपने नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नोटबुक में, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन कितना है? 7 ही है ना, 7। नाम डाल सकते हैं पावर ऑफ अ ट्रिब्यूनल, पावर ऑफ ए ट्रिब्यूनल। ओके, चलो अब तक ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ, अब तक सेक्शन खत्म नहीं हुआ। अब अभी यहाँ पे प्रोवाइडोज है, 2 प्रोवाइडोज है, देखो। प्रोवाइडिंग दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, एनी ऑर्डर, ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जो भी उसके आगे ऑर्डर पास हो रहा है उसके लिए कंपनी को क्या देना है? बोलो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? ठीक है ना, आपने कोर्ट में वगैरह देखा रहेगा, कोर्ट में मतलब कि आपने हिंदी मूवीज में वगैरह देखा रहेगा कि कोई भी ऑर्डर पास कर रहा है तो उसके पहले मुजरिम को अपना कहना कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का एक चांस दिया जाता है, ठीक है ना, कि मुजरिम को अपने पक्ष में कुछ कहना है तो वो कह सकता है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, ये दिया जाता है एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, तो आप याद पता होना चाहिए, सीख रहे हैं तो इसको बोलते हैं, जो भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों को, मुजरिम को, कि वो अपना कहना भी बोल सकता है बिफोर पासिंग द ऑर्डर, तो उसको एक बार मौका जरूर मिलता है कि आप अपना भी कहना कोर्ट के सामने रख सकते हो। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि ये कोई हुक्मशाही नहीं है कि भाई चलो तुम्हारे ऊपर ये हमने जुर्माना लगा दिया, चलो तुम्हारे ऊपर हमने ये लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो एक बार उसको एक कहना प्रस्तुत करने का मौका जरूर देना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और ये मिलता है एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, उसके बिहाफ पे ये दिया जाता है, ठीक है ना। अब व्हाट इज अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, कि मान लो ट्राइब्यूनल जो है वो क्या करना चाहता है कि कंपनी को वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर पास करना चाहता है, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, कंपनी को अपने पक्ष में कुछ कहना है तो वो कह सकते हो। तो कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स है वो कोर्ट के सामने, ट्राइब्यूनल के सामने अपना पक्ष रखेंगे, और उसके बाद अगर कोर्ट को कुछ चेंजेस करने हैं अपने जजमेंट में तो वो कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ट्राइब्यूनल इज गिविंग व्हाट
opportunity of being heard, and tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company including any obligation if any contracted or payment of any liability. तो कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के दिन से लेके डेट ऑफ ऑर्डर तक जितने भी, जैसे कि मैंने बोला था कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी अरेंजमेंट कंपनी ने थर्ड पार्टी के साथ किए हैं उनका भी ख्याल रखना है, बिकॉज एक बार कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है तो फिर क्रेडिटर्स कंपनी से पैसे क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट हुए हैं, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ है, तो ट्राइब्यूनल ने जरूर इन चीजों का ख्याल रखना है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं और उनको नुकसान ना हो बाय दी ऑर्डर। ओके, तो ये बातें जरूर याद रखनी है। तो यहाँ पे खत्म होता अपना क्या बोलो, सेक्शन नंबर 7। नीचे दिया है सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। एक बार इसको रीड करना, कम ऑन रीड इट एट योर ओन, कम ऑन, ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। रीड इट प्रॉपर्ली। हैव रीड इट, ओके। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली किस प्रकार से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक्चुअली में जाके इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, उसका अगर डिटेल्ड रूल अगर पढ़ना है तो यू कैन गो टू द रूल नंबर 38। यू कैन गो टू द रूल नंबर 38 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। ओके, अगर मैं आपको दिखाता हूं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, स्क्रीन पे देखेंगे, ध्यान देंगे। ये एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं है आपके, ठीक है ना, ये नॉलेज पर्सपेक्टिव है। अगर आप चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आएगा नहीं, ये आपके सीएस भाई बहन जो है उनके सिलेबस में डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इफ यू गो टू द रूल नंबर 38 कंपनीज रूल्स में जाना, रूल्स में आपको कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल चैप्टर नंबर 2 के जो रूल्स हैं 2014, वहाँ पे जाना और रूल नंबर 38 अगर आप देखोगे, ये एप्लीकेशन फॉर, नहीं ये नहीं, सॉरी, ऊपर वाला आएगा, रूल नंबर 38, यस। ये जो रूल है, रूल आपके सामने दिख रहा है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस प्लस करके एक ऐड हुआ है, ठीक है ना। सो जो भी है यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, देखो यहाँ पे INC 32 along with the e-memorandum and electronic articles of association 33 and 34। सो 32 में आपका इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, 33 में एमओए का फॉर्म है और 34 में आपका एओए का फॉर्म है, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपने भरना है, ठीक है। और भी सारी बातें हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फुल कंटेंट प्रोवाइडेड, यस। तो ये अमेंडमेंट है। रूल नंबर 38 को जरूर याद रखना, ठीक है ना। सो कोड दिया रूल नंबर 38, अगर किसी को एडिशनल नॉलेज पर्सपेक्टिव अगर कुछ पढ़ना है तो रूल नंबर 38 को जरूर रीड करना, आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर 9, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी कंपनी को रजिस्टर कैसे करवाते हैं वो हमने सेक्शन नंबर 7 में पूरा का पूरा डिटेल्ड में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। मार्क्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको आ सकता है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब बढ़ते हैं हमारा सेक्शन नंबर 9, जो अगला सेक्शन है जो है डील करता है उसी के कंटिन्यूएशन में, जो है इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ना व्हाट इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमने इफेक्ट्स ऑफ एमओए एओए देख लिया था, अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो सेक्शन नंबर 9 डीलिंग विद दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 9, फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, उसमें आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। तो जैसे उस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिख दिया, the subscriber to the memorandum and all other person who may from the time to time become a members of the company shall be
शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेंट इन द मेमोरेंडम। तो पहला जो इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन का वो ये हो सकता है, जो बोल्ड में आपको इंस्टीट्यूट ने लिखवा के दिया है, दैट वो क्या बन जाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब देखो क्या है कि कंपनी के जो सब्सक्राइबर होते हैं, कौन होते हैं, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कितने होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं और पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं। मैक्सिमम प्राइवेट में 200 हो सकते हैं और पब्लिक में अनलिमिटेड। तो जितने भी लोग कंपनी को बनाने के लिए कंपनी के मेंबर्स बने हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो पहले क्या है, बोलो एप्लीकेंट है, सब्सक्राइबर है। लेकिन जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, फॉर्मेट हो जाती है और कंपनी को मिल जाता है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उस दिन से ये लोग क्या माने जाएंगे, एक बॉडी कॉर्पोरेट माने जाएंगे। ये सुनो, बिकॉज अभी वो क्या बन चुके हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट के मेंबर बन चुके हैं। तो पहला इफेक्ट क्या है, बोलो कि जो भी सब्सक्राइबर है वो उस दिन से क्या बन जाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे। बाय द नेम कंटेंट इन द मेमोरेंडम, मतलब जो जिस भी नाम जो भी नाम नेम क्लॉज में मेमोरेंडम के लिखा हुआ है, उस नाम से वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। मतलब रिलायंस है या फिर जो भी कंपनी है, कजारिया लिमिटेड है, या फिर अपनी सन फार्मा है, रैनबैक्सी है, टाटा मोटर्स, टीसीएस, जो भी है, अमेजॉन, तो वो उस नाम से वो बॉडी कॉर्पोरेट उस दिन से मानी जाएगी। किस दिन से, जिस जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ है। Such registered company shall be capable of exercising all the functions of an incorporate company under this act। मतलब एक कंपनी जो काम कर सकती है वो सारे काम वो बॉडी कॉर्पोरेट उस दिन से कर सकती है। मतलब कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे एग्रीमेंट बना सकती है, कंपनी किसी के ऊपर कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई कर सकता है। तो सारे फंक्शन जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है वो उस दिन से कर सकती है। उसके बाद उसको क्या मिल जाता है, परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है, ठीक है ना। पावर टू एक्वायर डिस्पोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बोथ मूवेबल इमूवेबल एंड दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन स्यू, बी स्यूड इन द सेड नेम। ओके, मोटा मोटी बात कर ले, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट बन जाती है तो कंपनी, तो उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। वो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज रखते हैं एक कंपनी के, उसको परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी कर सकती है, मूवेबल इमूवेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं और वो किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है। ये है इफेक्ट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन। From the date of incorporation mentioned in the certificate, the company becomes the legal person. Company becomes what? The legal person, separate from the incorporators. So जो भी promoters है, जो भी subscribers है, उससे कंपनी का एक अलग अस्तित्व बन जाता है। Why? Because company is what? A separate legal entity. And there comes into existence the binding contract between the company and its members as evidenced by the memorandum and the articles। ठीक है, मतलब ये कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये बताया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद परपेचुअल प्रॉपर्टी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी बातें लिखी हुई है। अ शेयर होल्डर हु बाय द शेयर डज नॉट बाय एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अब ये बात क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भले ही कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा इस्तेमाल करके कंपनी प्रॉपर्टी खरीदी करती है, लेकिन शेयर होल्डर्स का डायरेक्टली प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का ओनरशिप या फिर इंटरेस्ट नहीं होता है, वो क्लेम नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे खरीदी की जाती है, वो प्रॉपर्टी खरीदी की जाती है इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड नॉट इन द नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स। ओके, उसके बाद कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इट में नोटिस दैट प्रोविजनल कंपनी में परचेज द शेयर्स ऑफ द अनदर कंपनी, कंपनी और दूसरे किसी शेयर्स कंपनी का शेयर्स खरीदी कर सकते हैं फॉर हैविंग द कंट्रोलिंग पर्पस। However, merely because of the company purchase all shares of another company, it will not serve the means of the putting an end to the corporate character of another company। मतलब भले ही मान लो कंपनी ने किसी और कंपनी के सारे शेयर्स खरीदी कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और कंपनी जो सब्सिडी कंपनी, होली ओन सब्सिडी बोलते हैं उसको, वो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, वो कंपनी भी रहेगी। स्पेंसर्स एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस मद्रास, कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी, मद्रास में केस हुआ था ये। देखो ये सारी जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, वो आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। Have been stated about, the law recognizes such company as a jurisdiction person separate and distinct member from its members. The mere fact that the entire share capital has been contributed by the central government and all its shares held by President of India and other officer of the central government does not make any difference in the position of the registered company and does not make the company as agent of the president or central government। Okay, मोटा मोटी बात कर ले कि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे शेयर्स खरीदी कर लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने शेयर्स खरीदी कर लिए, इससे भी कंपनी के अस्तित्व में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये कंपनी उनकी एजेंट है ऐसा नहीं माना जाता है। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर, कंपनी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एंटिटी। ओके, चलो से काम करेंगे।
ये जो सारी बातें हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें हैं ना, उसको होमवर्क मार्क करेंगे, ठीक है ना। और ये सेक्शन नंबर 9 जो है, ठीक है ना, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी मैंने बातें यहाँ पे अंडरलाइन की है, जहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है ना, वो सारी बातें यहाँ पे लिख के रखेंगे, ठीक है ना। या फिर आप चिट्ठी बना के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो भी बातें मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया है और नंबरिंग डाला हुआ है। हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 1 2 3 4 5 ये उसके इफेक्ट है, उन्हीं को आगे पन्ने पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलो फिर काम करेंगे, चिट्ठी लगाओ और सारी बातें लिख दो। कम अभी क्या फास्ट, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके हो गया। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ सेक्शन नंबर 9। नाउ सेक्शन नंबर 10, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ एमओए एओए, वी हैव कवर्ड। आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट। आपके मटेरियल में पीछे मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, और बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। I'm requesting all of you that please go through all that questions that are very important. Those are very important from the exam point of view. हो सकता है आपको वहां से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। सो प्लीज जाके वो सारे एमसीक्यूज और सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर रीड करना, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। अब वहां पे एक पहले एक सवाल हुआ करता था जो अभी नहीं है, मैंने गो थ्रू किया। जो सवाल है कुछ इस प्रकार का, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बहुत बारी पूछा गया है, मई 2004, मई 2007, मई 2013 में ये सवाल पूछा, मतलब 3-4 बार ये सवाल आ चुका है, वो स्टडी मटेरियल में भी था। अब ये क्यों निकाल दिया आई डोंट नो, लेकिन एक बार इस सवाल को जरूर पढ़ेंगे। सवाल क्या है देखो, द एओए ऑफ अ लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड दैट एक्स शैल बी द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मतलब एओए में लिखा हुआ है दैट एक्स शैल बी द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंड ही शैल बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूवन मिसकंडक्ट। मतलब एक्स जो लॉ ऑफिसर है, एओ में ये लिखा हुआ है कि उसको हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, और उसको हम लोग तब तक नहीं निकालेंगे जब तक वो उसके उससे मिसकंडक्ट नहीं होता है, और वो मिसकंडक्ट प्रूव नहीं होता है। मतलब उसने अगर मान लो कुछ अफरा तफर किया, कुछ मिसकंडक्ट किया कंपनी में, तो हम उसको निकालेंगे। द कंपनी रिमूव्ड हिम इवन दो ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ओके, ही वाज नॉट गिल्टी, यहाँ पे गिल्टी होना चाहिए, ही वाज नॉट guilty of misconduct. Decide whether company's action is valid. Now, as per as per the knowledge of section number 10, okay, आप मुझको समझाएंगे वेदर कंपनीज एक्शन इज वैलिड और नॉट। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आपके मॉड्यूल में पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें एक एडिशनल क्वेश्चन ये डाल सकते हो। कम ऑन, तो मुझको बताएंगे वेदर द कंपनीज एक्शन इज वैलिड। सेक्शन नंबर 10 में हमने ये पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ एमओए एओए, हमने देखा था यहाँ पे कि एमओए एओए इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इज बाइंडिंग ऑन कंपनी, कंपनी इज बाइंडिंग टूवर्ड्स इट्स मेंबर्स आर बाइंडिंग टूवर्ड्स कंपनी। ओके, ये हमने देखा, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट और डिस्कस करने लायक है, जो है वेदर कंपनी इज बाइंडिंग टूवर्ड्स थर्ड पार्टी बिकॉज ऑफ दिस एमओए एओए। क्या कंपनी एमओए एओए में जो भी बात लिखी हुई है उसके वजह से थर्ड पार्टी को बाइंडिंग है या नहीं है? ये तो बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, लेकिन क्या ये बाइंडिंग है? तो इसका आंसर है नो। Companies MOA AOAs, what I can say is as contents, that companies MOA AOAs contents are not binding on the third party, or companies not binding by the contents of MOA AOA toward the third party. Why? Because MOA AOA is binding on the company, वो थर्ड पार्टी के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहती है, फिर कंपनी थर्ड पार्टी की तरफ उन चीजों की वजह से लायबल नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होता है दैट कंपनीज एक्शन इज वैलिड और नॉट। तो यस, कंपनीज एक्शन इज वैलिड।
कंपनीज एक्शन इज वैलिड। ओके, तो उसका आंसर आप लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट डाउन द आंसर फॉर दैट। पहले क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन लिखो ये, और उसके नीचे आंसर लिखो उसका। आई डिक्टेट यू द आंसर। द कंपनीज एक्शन इज वैलिड, द कंपनीज एक्शन इज वैलिड। पहले लिखो, समझा नहीं तो लिखो, डिस्कस करेंगे और एक बार। द कंपनीज एक्शन इज वैलिड since the MOA and AOA, since the MOA and AOA do not bind the company to the outsiders, since the MOA AOA do not bind the company to the outsiders, thus unless X proves a contract independent of MOA AOA, thus unless X proves a contract independent of the MOA AOA, he cannot enforce any right against the company. He cannot enforce any right against the company as he has no right, as he has no right to rely on the article, as he has no right to rely on the articles। मतलब ये जो x है, ये जो x है, ठीक है ना, वो कंपनी के एओए के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, कंपनी के एओए के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। हाँ, MOA AOA आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ये कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। लेकिन जब कंपनी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना, तो थर्ड पार्टी इस MOA AOA का क्या बोलते हैं उसको, का बेस पकड़ के कंपनी को एनफोर्स नहीं कर सकती, कंपनी को एनफोर्स नहीं कर सकती। वो समझे? थर्ड पार्टी जब कंपनी को एनफोर्स करना चाहती है कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वो MOA AOA का बेस नहीं पकड़ सकती। हाँ, लेकिन कंपनी उसका बेस जरूर पकड़ सकती, इवन इफ दे आर एनफोर्सिंग थर्ड पार्टी टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एक्स है, जो थर्ड पार्टी है, वो ये नहीं कह सकता कि देखो कंपनी, आपके एओए में ये बात लिखी हुई थी कि जब तक मुझको मैं मिसकंडक्ट नहीं करूंगा तब तक आप मुझको निकालेंगे नहीं। लेकिन कंपनी अगर उसको निकालना चाहती है तो वो निकाल सकती है। एक्स ऐसा नहीं बोल सकता कि एओए में जो लिखा है कि आप मुझको मिसकंडक्ट के बगैर, मिसकंडक्ट ना होते हुए मुझको नहीं निकाल सकते। ये थर्ड पार्टी एक्स जो है वो कंपनी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता, कंपनी श्योरली उसको निकाल सकती है। हाँ, लेकिन अगर एक्स और कंपनी के बीच में कोई सेपरेट एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अगर होता उनके बीच में, तो उस केस में कंपनी इज बाइंडिंग ऑन दी एक्स बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता कि अगर मिसकंडक्ट होता है तभी हम लोग आपको निकालेंगे, तो उस केस में एक्स बोल सकता है कि कंपनी तुम मुझको मिसकंडक्ट ना होते हुए आप मुझको कंपनी से नहीं निकाल सकते। क्लियर है? पक्का? जेपिया? यस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। आप अपने क्वेश्चंस का जो सेट है, जो आफ्टर योर चैप्टर दिया हुआ है वहां पे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जितने भी सवाल दिए हुए हैं वहां पे उनको जरूर एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे खत्म हुआ सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, छोटे सेक्शन है, 2-3 सेक्शन, उसको खत्म करते हैं। सेक्शन नंबर 20, दैट इज द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या होता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट? हमने जनरल प्रोसेस एक्ट में भी इसको पढ़ा है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट को, उसका ये थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। So section 20 of the company provide that the mode in which the document may be served on the company, on the members and also on the रजिस्ट्रार। मतलब कंपनी किन किन मोड से, किन किन वेज से डॉक्यूमेंट जो है वो सर्व कर सकते हैं। सर्व करना समझ रहे हो ना? मैंने सर्व और पोस्ट में फर्क समझाया था। यहाँ पे पोस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ पे सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट है। सर्विंग नहीं है, सर्विंग। सर्विंग मतलब उनको पहुंचाना, पोस्ट मतलब मैंने बस पोस्ट कर दिया, पहुंचा नहीं पहुंचा वो कुछ मुझको समझा ही नहीं है। सर्विंग मतलब कि उनको पहुंचना जरूरी है। तो नोटिस शैल बी सर्व्ड बोला है, नोटिस शैल बी पोस्टेड नहीं बोला जाता है। नोटिस सर्व करना मतलब कंपनी ने ऐसा इंतजाम करना है कि वो डॉक्यूमेंट उस इंटेंडेड रिसिपिएंट के पास पहुंचे, उसको बोलते हैं सर्विंग। ओके, हाउ टू सर्व द डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। किसके इसके ऊपर? विच डॉक्यूमेंट शैल बी सर्व्ड ऑन द कंपनी मेंबर्स एंड ऑल्सो ऑन द रजिस्ट्रार। मतलब किसी कंपनी के ऊपर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे। मतलब ये लॉ बोलता है कि कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहता है या फिर
कंपनी किसी मेंबर को डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहती है या फिर कंपनी किसी रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहती है, तो किस प्रकार से कर सकती है? तो पहला है सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू द कंपनी। कंपनी को कैसे डॉक्यूमेंट सर्व करे? तो कोई भी बंदा हो, अगर कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहता है तो डॉक्यूमेंट में भी सर्व ऑन द कंपनी और एन ऑफिसर या फिर किसी ऑफिसर ऑफ द कंपनी बाय सेंडिंग इट टू द कंपनी और ऑफिसर एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी, ओके, सपोजिंगली मैं हूं, ठीक है ना, मैं अगर मान लेते हैं मैं टाटा मोटर्स या उनके किसी ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहता हूं, तो वो मैं किस प्रकार से कर सकता हूं? ठीक है ना, तो मैं कर सकता हूं बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ओके, इंडियन पोस्ट का रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल करूंगा, और बाय स्पीड पोस्ट और लिखा है, मतलब इसमें से किसी एक का इस्तेमाल हो सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट तो आपको पता है, और बाय एनी कुरियर सर्विस और लीविंग एट द रजिस्टर ऑफिस। फिजिकल कॉपी में वहां पे लेके जाऊंगा। मान लेते हैं मैं टाटा मोटर्स के बगल में रहता हूं, तो मैं डायरेक्टली जाके वहां पे छोड़ दूंगा कंपनी के ऑफिस में। और बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड, यानी कि ईमेल वगैरह भी कर सकता हूँ। सर व्हाट्सएप करूँ क्या? कान के नीचे कंटा खाएंगे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता है। सर टेलीग्राम करूँ क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब आपको मेल वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट या फिर कंपनी के किसी ऑफिसर को डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहते हो, तो आप रजिस्टर पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, आरपी, एसपी या कुरियर सर्विस। आरपी, एसपी एंड सीएस, ओके। रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर सर्विस, या फिर आप फिजिकली में रजिस्टर ऑफिस में क्या कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट छोड़ सकते हो। और ये रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस कहाँ पे करना है? ये करना है रजिस्टर ऑफिस पे। मान लेते हैं टाटा मोटर्स का एक रजिस्टर ऑफिस है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है ना। और उसका ब्रांच ऑफिस है, उसका ब्रांच ऑफिस है गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में मान लो सूरत में है, ठीक है। और अगर मान लो मुझको कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, तो मैं जाके गुजरात में अगर वो डॉक्यूमेंट छोड़ के आता हूँ ना, तो वो डॉक्यूमेंट सर्व नहीं माना जाता है। मैंने उसको कहाँ पे भेजना है? रजिस्टर ऑफिस मुंबई में ही भेजना है, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल कंपनी इज ग्रांटिंग यू टू सर्व डॉक्यूमेंट एट एनी अदर प्लेस, तो वो वहां पे हो सकता है। However, where securities are held in the depositories, the records of the beneficial ownership may be served by the depository on the company by means of electronic or any other mode. Okay, so depository की बात किया है, इसको छोड़ो, ये कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं आपके नॉलेज परस्पेक्टिव, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात हमने क्या सीखी, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर सर्व करना है कंपनी के ऊपर, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? रजिस्टर पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, कुरियर से भेज सकते हैं, रजिस्टर ऑफिस पे उसको छोड़ सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पे जानी चाहिए? रजिस्टर ऑफिस में जानी चाहिए। ब्रांच ऑफिस में जा गया तो वो सर्विंग नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार और मेंबर्स। अब आरओसी या मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कंपनी आरओसी को या फिर मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहती है, तो कैसे करेगी? तो डॉक्यूमेंट सर्व होते हैं बाय पोस्ट, ओके। अब यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट नहीं, नॉर्मल पोस्ट, जैसे कि हम लोग ऐसा चिपका के उसको चिपकाते हैं, उसको गम से चिपकाते हैं और वो डब्बे में छोड़ देते हैं, वो लाल डब्बा जो होता है उसको छोड़ देते हैं, वो पोस्ट ही होता है, ओके। उसको रजिस्टर पोस्ट नहीं बोलते, उसको रेगुलर पोस्ट बोलते हैं। तो रेगुलर पोस्ट से हो सकता है, या फिर रजिस्टर पोस्ट हो सकता है, स्पीड पोस्ट हो सकता है, कुरियर हो सकता है, डिलीवरिंग एट हिज ऑफिस और एड्रेस, मेंबर के घर पे छोड़ो, या फिर फिजिकल फॉर्म में, या फिर रजिस्टर के ऑफिस में जाके छोड़ो, वो भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब देखो ये सारी बातें सेम है, ये बातें सेम है एज अर्लियर, बस ये पोस्ट ये क्या हो गया? ऐड हो गया। तो रजिस्ट्रार को या फिर मेंबर को भेजना है तो आप पोस्ट से भी भेज सकते हो, लेकिन कंपनी को भेजना है तो पोस्ट से नहीं भेज सकते, ओके। However, mere a member may request for delivery of a document through any particular mode। अगर मान लो कोई मेंबर पर्टिकुलर मोड ही चाहता है, तो उसने क्या करना है? कंपनी को वो अप्लाई करना है और कंपनी को वो फीस देना है, ठीक है। मान लो कंपनी मेंबर चाहता है कि मुझको पोस्ट से मत भेजो, मुझको है ना हैंड डिलीवरी देना, तो ठीक है, कंपनी को हैंड डिलीवरी ही देना है, कंपनी उसको पोस्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए जो खर्चा लगेगा वो मेंबर ने ऑलरेडी कंपनी को दे देना है, ठीक है। ये रहा कंपनी बोलेगी ठीक है, आपको जिस प्रकार से उस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, लेकिन उसका जो खर्चा लगेगा वो आप हमको देना। तो बाकी लोगों को पोस्ट से जाएगा, आपको बस घर पे डिलीवरी मिल जाएगा, आपको एक मस्त बाहुबली का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको एक वीआईपी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपने खर्चा भी करना है, ठीक है। तो ये रहा बात, क्या बोलो, पॉइंट नंबर 2, दैट इज द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू द मेंबर, ठीक है ना। मार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 4 मार्क के लिए एक बार सवाल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो दो बातें, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू द कंपनी एंड सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू द मेंबर्स, बस एक ही फर्क है, यहाँ पे पोस्ट का फर्क है, ठीक है। ओके, जे पे क्या
एक्सप्लेनेशन निधि कंपनी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मीन वगैरह बोला है, ठीक है ना। एक काम कर सकते हैं, उसको आप होमवर्क मार्क कर सकते हो, एक बार रीड करना। होमवर्क क्यों, चलो क्लास वर्क ही पढ़ लो। निधि कंपनी वगैरह है, ठीक है ना, उसको आप अभी मत पढ़ो, ठीक है ना। बस ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो है, ठीक है ना, इस चीज को एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट का एक प्रकार है, तो उसको एक बार पढ़ लो। कम ऑन, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 20 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, चलो पढ़ते हैं व्हाट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। एज पर सेक्शन 21 ऑथेंटिकेशन यानी कि कौन डॉक्यूमेंट को साइन करेगा फिर ऑथेंटिकेट करेगा। अगर मान लो मेरे पास किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट आता है, तो मैं कब बोलूंगा कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी से आया हुआ है। हाउ कैन आई मेक श्योर दैट ये कंपनी से ही डॉक्यूमेंट आए, कोई भी मुझको कंपनी के नाम पे भेज सकता है, तो देयर शुड बी समवन हु इज ऑथेंटिकेटिंग द डॉक्यूमेंट, ओके। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो हु विल ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट। Section 21, a document of the proceedings requiring authentication of the company or contracts made on or behalf of the company may be signed by, कौन कौन साइन करेगा, any key managerial person, कोई भी key managerial person, और any officer of the company duly authorized by the board in this behalf। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी उनको ऑथराइज करेंगे, बोर्ड बोलेंगे कि तुम इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, तुम इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर साइन कर सकते हो, तो वो बंदा साइन कर सकता है। तो यहाँ से दो बातें निकल के आ रही है, एक तो की मैनेजर पर्सन या फिर पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड, ओके। ये भी एग्जाम में सवाल आया हुआ है, तो मार्क इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। छोटे छोटे सेक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये उसका चार्ट है, ठीक है ना, ये भी चार्ट भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। सो की मैनेजर पर्सन कौन कौन होता है, ये बात यहाँ पे डिस्कस किया है। तो सीईओ, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी सच ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स और हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज की मैनेजर पर्सन बाय द बोर्ड और एनी सच ऑफिसर प्रिस्क्राइब, ओके। तो इन सब लोगों को की मैनेजर पर्सन बोला जाता है, ठीक है ना। एक बार उसको एज अ होमवर्क मार्क करना, ढंग से उसको एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हुआ सेक्शन नंबर 21। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22 के तरफ, जो है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको पता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम लोग सीख गए हैं। तो हाउ टू एग्जीक्यूट बिल ऑफ एक्सचेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। So bill of exchange, hundi or promissory note shall be deemed to have been made, accepted, drawn or endorsed on behalf of the company if it is made। तो कंपनी ने बनाया है, कैसे बोलेंगे, if it is drawn, accepted, drawn or endorsed in the name or on behalf of the or on account of the company by any person acting its authority express or implied। मतलब कंपनी के बिहाफ पे उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए कि वो कंपनी के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट बना सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। ए कंपनी में बाय राइटिंग अंडर द कॉमन सील इफ एनी, कॉमन सील अगर है तो, authorize any person either generally or in respect of specified matter as its attorney to execute the other deeds on behalf of the company in place of the either or any outside India। अगेन यहाँ पे बोला है कि अगर मान लो कोई डीड वगैरह कंपनी के नाम पे बनाना है, तो उसके लिए भी बंदा क्या होना चाहिए, बोलो ऑथोराइज होना चाहिए। However, in case of company does not have a common seal, अगर common seal नहीं है तो
ऑथोराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय द डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। मतलब जिस बंदे को ऑथोराइज करना है वो कॉमन सेल के बजाय 2 डायरेक्टर या फिर 1 डायरेक्टर या फिर 1 कंपनी सेक्रेटरी उस बंदे को ऑथोराइज कर सकता है। अ डीड साइन बाय सच अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी अंडर दिस सील शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। जो भी बंदे को ऑथोराइज किया है उस बंदे ने अगर कोई एग्जीक्यूट किया है तो वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होती है, ठीक है ना। नीचे कुछ चार्ट दिया है, ठीक है ना, ये चार्ट को भी होमवर्क मार्क करेंगे, ठीक है ना। कॉमन सील वगैरह ये कुछ पॉइंट है नहीं। चलो तो यहाँ पे खत्म अपना सेक्शन नंबर 22 ऑल्सो। तो सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 22 का समरी आप जरूर बनाएंगे एट योर ओन, ठीक है ना, और यहाँ पे चिपका देंगे। मार्क दिस सेक्शंस एज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम में आते हैं है, ठीक है। आगे जब चैप्टर खत्म होता है तो आपको टेस्ट योर नॉलेज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू दिए हुए हैं, फिर आपको क्वेश्चन और आंसर भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपने करने जरूर है। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन दिया था वो आपने जरूर ऐड करना है उसमें, ठीक है ना, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो सो ये चैप्टर नंबर 2 जो है, ठीक है ना, उसमें से अभी भी कुछ सेक्शंस करने बाकी हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई थिंक सेक्शन नंबर 19 हमारा रह गया है, ठीक है ना, और सेक्शन नंबर 10A, ओके, ये 2 सेक्शन रहे हैं और एक सेक्शन नंबर 18 भी बचा हुआ है। तो सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 10A, ये 3 सेक्शन बचे हुए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 से। ये खत्म होने के बाद चैप्टर नंबर 2 अपना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में इसको भी खत्म कर देंगे तो अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, चलो सो टिल देन bye bye, stay home, stay safe, eat healthy, do exercise regularly, do your study regularly, और सावधान रहना, सतर्क रहना इस कोरोना के एटमॉस्फेयर में। चलो सो मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग प्रोविजन के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।